नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव को लेकर जिस तरह से हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है, इसी पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का साउथ एडिशन जो हो रहा है आज, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उसमें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की है हमारे सहयोगी राहुल कंवल। Hello and welcome. The southern peninsula of India is the one last unconquered political bastion for the Bharatiya Janata Party. To talk about the ruling party's roadmap for the southern states and the significance of these assembly elections, we're joined at the India Today Conclave South by the BJP's President Jai Prakash Nadda. Nadda ji, welcome to the India Today South Conclave. This is the first time that you've ever come to a conclave after having become president, and we are delighted to have you with us. Thank you so much for joining us at the India Today Conclave South. Thank you, Rahul ji. Really, it's for the first time that I've come to India Today Conclave, and I really thank you for giving me an opportunity, and I also thank you for giving me an audience with such an illustrious audience and gathering, which I can see. And yes, through your channel, I'll get an opportunity to communicate my ideas and the ideas of Bharatiya Janata Party to millions of your viewers. Thank you very much for giving me this opportunity. Nadda ji, I want to start by asking you about the significance of this round of assembly elections. 824 seats, about 18% of India's electorate. The large focus has so far been on West Bengal. But from the perspective of the Bharatiya Janata Party, how important are the southern states in your calculation? Tamil Nadu, Kerala, Puducherry. Do you see the BJP as a fringe player in this election in the south, or do you see yourself as using this election as a stepping stone going forward? You see, we take every election in an important way, and we take it very seriously. This time we have got an opportunity to prove ourselves in the southern states, and we want to avail this opportunity, and that is why we are going in an aggressive manner on issues which are related to development, and which is also related what has stopped the development in the south and how we can go forward under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi ji. All these issues we are going to put forth before the people, before the electorate of the southern states. I find that in this elections, we are going to form the government in West Bengal, we will retain Assam, and we will, NDA will win in Tamil Nadu, and we will form government in Puducherry, and we will do good in Kerala. This is what we feel. And we want to make this election where issues are important, and how electorate accepts these issues will be the important aspect on which we will be strategizing. And we take this election very in an important way, seriously, and we development is our agenda, which we are going to put forth before the southern states. Tamil Nadu, as I said, again, NDA will form the government, and Puducherry we are going to form the government this time. So we're currently in Tamil Nadu, and I want to spend some time talking to you about your party's prospects over here. You're in alliance with the AIADMK. This time they're without the towering personality of J. Jayalalitha. There's also a lot of anti-incumbency. We saw in the Lok Sabha elections of 2019, the DMK alliance got 39 seats, just one seat they couldn't get. All the other Lok Sabha seats were won by the DMK. How difficult does it put the BJP, how difficult does it make it for the BJP to try and win when you're on the side of a party which has so much anti-incumbency to deal with? Rahul, a lot of water has passed through and has flown, and since 2019 there's a sea change in the politics of Tamil Nadu and the image of NDA, and how NDA is coming up, that I would like to share with you. If I talk about the schemes, I find that the schemes initiated by Prime Minister Modi has been successfully implemented by the Tamil Nadu government, the AIADMK government,
in Tamil Nadu. And I can see that at the grassroots level, that development has taken place. If I talk about the management of pandemic, whatever facilities were provided by the Government of India, that has been implemented and that has reached the last man in Tamil Nadu. If I talk about the vaccination, people talk about Modi UC, that inoculation vaccination program has been successfully being implemented in Tamil Nadu. If I talk about the schemes and the budget, in Modi 2, first year approximately 1.5 lakh crores were allotted to Tamil Nadu, and that has been spent again in the Modi 2. The second year we have allocated 2 lakh crores for metro, for railways, for highways, for pharmaceutical hubs, and for other development which are taking place in for solar park in Tamil Nadu. All these developments are taking place in Tamil Nadu. If I talk about the cultural identity, Prime Minister Modi has seen that the cultural identity of Tamil Nadu is brought forward not only on the national forums but also on international forums. And here in Tamil Nadu also, it was Modi ji who gave the permission for Jallikottu. If I talk about the Vetrivale, that has also been accepted, very much appreciated by the people of Tamil Nadu. So if we talk on the cultural side, the social side, the development side, lot of development is taking place in Tamil Nadu, and the popularity of Modi ji is immense. So we feel, and there is no anti-incumbency and there is no pro-incumbency towards DMK. So, and if I talk about DMK, people have not forgotten the whole UPA government. The people have not forgotten. When I talk about 2G, it means 2 generations of Maran family involved in corruption. If I talk about 3G, it is the Karunanidhi family which is has been involved for 3 generations in corruption. If I talk about 4G, it is Congress party which has been involved in corruption for 4 generations. And people have not forgotten it. And there is no pro-incumbency for DMK party. And there is no anti-incumbency against AIDMK. So I am very optimistic about it. And I feel that in coming times, the election will be fought on issues. And we are going to take these issues very aggressively among the people. And the Vetrivale issue, if I talk about the presence of Bharatiya Janata Party, person or a leader like Stalin, who is an atheist, if he has to hold the Vetrivale, this means that the issues raised by Bharatiya Janata Party has been well accepted by the people of Tamil Nadu, and that is why he has to also succumb to the issues which have been raised by us. So there is a lot of water has flown after 2019, and in 2021 elections we are going to form the government. I want to ask a few personal questions. Now, you were made BJP president at a time when former BJP president Amit Shah went and joined the Home Ministry. His term as BJP president got over. Now that is like having to become captain of the Indian team after Virat Kohli or after Sunil Gavaskar or after Sachin Tendulkar. How difficult was it to go in and try and fill such big shoes and having to do the same job that Amit Shah ji did before you? Were you always concerned about being judged by people within and without, that Nadda ji to ye kar rahe hain, lekin isi situation mein Amit Shah kya karte? You see, this problem comes only when in your thinking you think in terms of I. I think in terms of we. When I talk about Bharatiya Janata Party, I don't talk about I. I talk about 18 crore BJP members, a galaxy of leaders, and I believe in what I always say is that collective leadership under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. So we are all collectively going forward.
where you have taken the example of Virat Kohli, you have taken the example of Indian cricket. What I say, I'll give you the example of sports only. Becoming a captain of a team does not change your placement in the game. Supposing if you are a middle order batsman and you become a captain, you don't take the opportunity of becoming the opening batsman. Supposing in a football, you are a full back and you become the captain. So you don't become a centre forward player. The same way, here also, JP Nadda has got his own style of functioning, and it is a functioning where we take the views of our every important leader and collectively we go forward. So I don't feel that because the captain has changed, the style of functioning of Bharatiya Janata Party is going to change. We are working in continuity, and it is an addition that I have got an addition of Nitin Gadkari, I have got an addition of Rajnath Singh ji, I have got an addition of centre forward player like Amit Shah, and I take everybody into consideration, and so I feel more strengthened. So it's the Bharatiya Janata Party shoe which I am filling, and all together we are a strength to reckon with. So I don't feel that anything is going to go the other way around, because it adds to the strength. And as a captain, I am a person who take everybody along, and so under the dynamic leadership of Prime Minister Modi ji, who is not only acclaimed nationwide but internationally also, it is an opportunity for us to work under his guidance and to see and build up the party, and that we do. तो दक्षिण भारत में चुनाव है और वहां पर आप ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के साउथ एडिशन में जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष को सुन रहे थे। टीम के तौर पर बीजेपी कैसे काम करती है, इन सब पर वो चर्चा कर रहे थे। अब आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बंगाल। आज चर्चा दो चेहरों की, दो तस्वीरों की, दो नजरियों की, दो सोच की, क्योंकि इस तस्वीर पर बड़ी चर्चा हो रही है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है, खास तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी का व्हील चेयर में बैठा हुआ वो तस्वीर, और अगर वो आगे चुनाव प्रचार भी व्हील चेयर में करती हैं तो लोगों की सहानुभूति उन्हें मिलेगी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से ही आज नामांकन दाखिल कर रहे थे, उनका शक्ति प्रदर्शन। क्या है ये दो तस्वीरें और क्या है इनके राजनीतिक मायने, डिकोड कीजिए। आज हम पश्चिम बंगाल की दो सबसे अहम सियासी तस्वीर के दो दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। जैसे किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे बंगाल के सियासी दंगल के दो पहलू हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के बाद सबसे बड़े मुकाबले की बिसात पर कौन किस पर भारी है, यानी नंदीग्राम में शुभेंदु का फैक्टर क्या है। नंदीग्राम के दूसरे सिक्के यानी ममता बनर्जी के लिए जीत कितनी आसान या मुश्किल होगी। पहले ममता बनर्जी ने पर्चा भरा और अब शुभेंदु अधिकारी, यानी सियासी युद्ध भूमि में सेनाएं चल गई हैं, शंखनाद हो गया है और सबसे बड़े मुकाबले में हार और जीत के लिए सेनाएं तलवार भांजने लगी। आज हम आपको दोनों पक्षों के बारे में बताएंगे। ठीक इसी तरह बंगाल की जिस तस्वीर पर पूरे देश की नजर है वो है ममता बनर्जी की चोट। सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक यही मुद्दा चर्चा में है। ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर दो नजरिए सामने आ रहे हैं। पहला नजरिया ये कि जब व्हील चेयर पर ममता रैलियों में जाएंगी, उनके पैर में प्लास्टर देखकर एक सहानुभूति की लहर पैदा होगी और उसी लहर से जीत मिलेगी। तो दूसरा नजरिया ये है कि ममता को चोट से कोई सियासी फायदा नहीं मिलेगा। बंगाल के सियासी वोट भूमि से आई इन दोनों तस्वीरों का संपूर्ण विश्लेषण, शुभेंदु की शक्ति, ममता का मैजिक, आज इन दोनों का तथ्यों के आधार पर सटीक व्याख्या आपको दिखाएंगे। ठीक इसी तरह चोट और वोट को लेकर जो नए सियासी समीकरण बंगाल की सियासत में बने हैं, उसकी एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे। पैर में फ्रैक्चर लेकिन तैयार है ममता। द ग्रेट बैटल ऑफ ममता वर्सेस शुभेंदु। मंदिर है, ये हर साल नॉमिनेशन के लिए, पहले नॉमिनेशन मेरा नहीं है। ये आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं। बंगाल के सबसे बड़े मुकाबले का पार्ट 2 संस्करण
इन्हीं तस्वीरों के साथ शुरू हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में आशीर्वाद लिया। भक्ति के बाद नंदीग्राम की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का नंबर आया। नंदीग्राम के दंगल को आप इसी से समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता दिल्ली से पहुंचे शुभेंदु का पर्चा भरवाने। शक्ति प्रदर्शन के बाद शुभेंदु ने पर्चा भरा। एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने वाला है, नंदीग्राम का प्रेस्टीज बैटल जिसे कहा जाता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 2016 तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट को 67% वोट से जीते थे और इस बार उनको टक्कर दे रहे हैं खुद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता। नंदीग्राम के लिए ये चुनाव एकदम अलग है, क्योंकि नंदीग्राम के सबसे बड़े मुकाबले के खिलाड़ी बदल गए हैं। नंदीग्राम में सियासी भिड़ंत के कायदे और कानून एकदम बदल गए हैं। सबसे पहले नंदीग्राम की चुनावी भिड़ंत का मतलब समझिए। इस बार नंदीग्राम का खेल कैसे बदला हुआ होगा। ममता के विश्वास पात्र थे शुभेंदु, ममता के खिलाफ चुनावी योद्धा। टीएमसी से शुभेंदु चुनाव जीते, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु। बूथ बूथ पर मजबूत थी टीएमसी, बूथ बूथ पर शुभेंदु सेंध लगाएंगे। शुभेंदु के भरोसे थी ममता बनर्जी। बीजेपी को अब शुभेंदु का सहारा। टीएमसी वर्कर ने चुनाव लड़ा, खुद ममता बनर्जी मैदान में है। एक शब्द है गारंटी। जब हम और आप भी सामान खरीदने बाजार जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कितने दिन की गारंटी है। राजनीति में गारंटी नेता के लोकप्रियता मीटर से उसकी जीत की गारंटी को तय किया जाता है, और इसीलिए नंदीग्राम में आइए आपको दिखाते हैं शुभेंदु वर्सेस ममता बनर्जी। लोकप्रियता के मीटर पे कौन कहां पर है। ममता बनर्जी 14 मार्च से चुनावी अभियान शुरू करेंगी। पहले घोषणा पत्र और फिर रैली करेंगी। प्लान यह है कि वो व्हील चेयर पर प्रचार के लिए जाएंगी, लेकिन क्या ममता को लगी चोट से बंगाल के सियासी समीकरण बदल सकते हैं? और अभी इस समय ममता बनर्जी व्हील चेयर भी रेडी रखा गया है, लेकिन व्हील चेयर से मतलब कितना कैंपेन कर सकेंगे। ममता बनर्जी हम देखते रहते हैं कि स्टेज में कितना सक्रिय रहती हैं, कैसे मास कम्युनिकेट करते हैं। वो व्हील चेयर में इसके पहले व्हील चेयर में कैंपेन करना पश्चिम बंगाल में कोई नेता को हम देखे नहीं है। अगर ममता बनर्जी के अतीत में झांके तो जब उन पर हमला हुआ वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी हैं। 16 अगस्त 1990 को ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। सीपीआईएम के वर्कर लालू आलम ने किया था ममता पर हमला। हमले के वक्त ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की लीडर थी। हमले के बाद कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरी। 1993 में ममता पर सीएम ज्योति बसु के सामने हमला हुआ। राइटर्स बिल्डिंग के सामने घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। राइटर्स बिल्डिंग वाली घटना के बाद ममता बनर्जी चर्चा में आ गई। 2006 और 2007 में नंदीग्राम सिंगूर के वक्त हमले की कोशिश हुई। परिणाम ये हुआ कि साल 2011 में ममता सरकार में आ गई। ये तब है जब ममता के पैर में प्लास्टर है। डॉक्टरों ने 1 हफ्ते और रेस्ट की सलाह दी थी। 48 घंटे और निगरानी में रखना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। 1 हफ्ते बाद फिर ममता बनर्जी का चेकअप होगा। And local UN condition decided in favor of keeping her for another 48 hours for observation, but due to her repeated request, decided to discharge with appropriate advices and instructions. वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा है। आरोप यह है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ और हमले में पैर की हड्डी टूट गई, लेकिन ममता बनर्जी चोटिल होने के बावजूद व्हील चेयर पर प्रचार करेंगे। इतिहास गवाह है, ममता पर हुए हमलों ने उन्हें सियासी रूप से मजबूत किया। तो क्या ममता को लगी चोट का फायदा मिलेगा जैसा पहले मिला है? ये बड़ा सवाल है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव को आखिर गुस्सा क्यों आता है। 4 साल हो गए सत्ता से निकले हुए अखिलेश यादव को, लेकिन दम खत्म नहीं हुआ। मुरादाबाद में उनके कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ मारपीट की। उनको रोकने के बजाय अखिलेश यादव भी उन्हें शय दे रहे थे। भड़ास निकाली जा रही थी वहां पर मीडिया। आहा, क्या कहने, समाजवाद साक्षात धरती पर उतर आया। लोहिया का सपना, चंद्रशेखर का सपना, मुलायम का सपना, समाजवाद का सपना। समाजवादी कार्यकर्ता पत्रकारों पर पिल पड़े और समाजवादियों के मुखिया अपने वीर कार्यकर्ताओं की पीठ ठोक रहे हैं।
कवि गोरख पांडे कह गए हैं, हाथी से आई घोड़े से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो देखिए, समाजवाद मुरादाबाद में आ गया। ना तो हाथी से आया, ना घोड़े से आया, अंग्रेजी बाजा भी नहीं बज रहा, लेकिन समाजवाद आ रहा। मुखिया जी तो पूरी तरह मुतमईन। भाजपा से मिली है, बहुत बात हो गई, अब तो सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आए थे। उनके सामने ही समाजवादी कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए, पत्रकारों से मारपीट करने लगे। इस मारपीट के दौरान एक पत्रकार तो जमीन पर गिर गया। कहां तो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को समझाते, तो वो उल्टा पत्रकारों पर ही बरसने लगे। पत्रकारों ने अखिलेश को उनके कार्यकर्ताओं की कारस्तानी बताई। अखिलेश ने सीनाजोरी के साथ कहा, हाँ मारा तो क्या हुआ। अभी तो अभी आपकी सरकार नहीं आई, तब मारना समाजवादी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के बीच जमीन पर गिरे पत्रकार की भी खिल्ली उड़ाने से अखिलेश चूके नहीं। अभी तो बेहोश हो गए, अभी तो बेहोश हो गए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। आजम खान के खिलाफ रिपोर्ट पर रिपोर्ट को लेकर दुखड़ा सुनाया। देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं पुलिस देख रही है। यहाँ की सरकार पुलिस के माध्यम से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र कर रही है। और आपके बगल में तो जीता जाता उदाहरण है। अरे मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? 1, 2, 3 नहीं, न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं। और फिर जिन अधिकारियों ने मुकदमे दर्ज किए हैं उनको गिफ्ट मिल रही है, उपहार मिल रहे हैं, कुर्सियां मिल रही हैं। अखिलेश यादव को पत्रकारों ने जब उनके कार्यकर्ताओं की कारस्तानी याद दिलाई, बताया कि कार्यकर्ताओं ने 5 स्टार होटल में तोड़फोड़ की, तो अखिलेश ने सारा इल्जाम पुलिस के मत्थे मर दिया। आपके कार्यकर्ता 5 स्टार होटल में तोड़फोड़ तो चाहे कोई कार्यकर्ता नहीं, ये पुलिस वाले हो सकते हैं। अखिलेश जी वीडियो भी है ना, अरे इंतजाम तो कोई भी देखना है, आराम से जाइए। पत्रकारों ने जब अखिलेश से सवाल पूछे तो अखिलेश उन्हें बीजेपी से सवाल पूछने की नसीहत देने लगे। सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो पूछ लिया करो। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं पूछ रहे कि भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। यूपी से समाजवादी पार्टी की सरकार की विदाई हुए 4 साल हो गए, लेकिन अखिलेश को अभी भी इसका दर्द साल रहा है। अपनी खींच अब अखिलेश पत्रकारों पर उतार रहे हैं। बहुत बढ़िया, हमें मीडिया के बारे में पता है। अखिलेश जी, आप मीडिया के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपका मीडिया के बारे में आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव तो पत्रकारों पर आग बबूला हो रहे थे, इस बात से बेखबर कि सियासी दलों की निगाहें उनके इस बड़बोलेपन पर लगी होंगी। बीजेपी खेमा अखिलेश पर पिल पड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री अखिलेश यादव जी, आपकी उपस्थिति में आपकी पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट व अभद्रता की घटना बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। आप देश के सबसे बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यूपी बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब स्वयं उनसे कोई सवाल पूछता है तो भड़क जाते हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, जिन्हें जमीन की समझ तो थी, व्यवहारिक समझदारी में उनका कोई सानी नहीं था।
अपने खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को भी मुलायम सम्मान देते थे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अखिलेश को अभी अपने पिता से बहुत कुछ सीखना बाकी है। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। तो आपने देखा पत्रकारों के साथ ये बदसलूकी का पूरा मामला, काफी बवाल इस पर राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से मच गया। लेकिन अब जरा आपको दिखाते हैं वो सियासत जो बंगाल में लगातार जारी है, क्योंकि एक तरफ लड़ाई बीजेपी और टीएमसी की चल रही है, लेकिन अब उसमें संयुक्त किसान मोर्चा, यानी जो तमाम किसान नेता दिल्ली के बॉर्डर पर अब तक विरोध कर रहे थे, वो पहुंच गए हैं कोलकाता। संयुक्त किसान मोर्चा की टीम कोलकाता पहुंची। टीम में योगेंद्र यादव, हनान मुल्ला, बलबीर सिंह राजेवाल, अतुल अंजान के साथ मेधा पाटकर भी थी। किसानों ने कोलकाता के गांधी मूर्ति से लेकर रामलीला पार्क तक रैली निकाली। रामलीला पार्क में ये रैली जनसभा में तब्दील हो गई। आज की रैली तो ट्रेलर थी। कल कोलकाता में किसान महापंचायत करने वाले हैं, जिसमें राकेश टिकैत शिरकत करेंगे। इससे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ किया कि वो बंगाल के चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से आए हैं और बीजेपी को वोट न दे, ये अपील किसान नेता करने वाले हैं। हमने तय किया है कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं इस वक्त 5 स्टेट्स में, हम वहां जाके अपने किसानों भाइयों से, आम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार ने अडॉप्ट करनी है जिससे सारा देश बर्बाद हो जाएगा, गरीब की रोटी छिन जाएगी। और हम आप सबको रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में कि अपना वोट बीजेपी को, कम से कम बीजेपी को मत दीजिए और किसी को वोट दे दीजिए। हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए, सिर्फ एक ही अपील है हमारी कि बीजेपी को वोट ना दीजिए, जो भी विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए। जो भी किसानों के पक्ष में थे उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि हम किसानों के साथ थे, हम किसी पार्टी के साथ नहीं थे। ये बात ध्यान में रखना। हम आंदोलन जीवी है ना, तो आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है और जीने के अधिकार के लिए आंदोलन होता है। मामला केवल एक राज्य का नहीं है, पूरे देश का है। लेकिन एक एक जगह पर अगर वो जीतते हैं तो वो फिर और गुर्मी में आते हैं। अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।